Swifts from all around the India. So I started importing things from Thailand, started putting them into the car, and then recently I got this wide body kit on it, which this is the first Swift in Delhi and in North India to have a wide body kit. All right, this is so nice. So, was customization into you since your childhood, yeah, or it literally gradually, put into your brain and you just, thought of doing all these stuffs? Because customization is something, a talented person would always recommend a customization. But when it comes to normal human being, we never do because people, thinks कि ऐसी mentality है कि it would actually degrade the value of our car. So before putting into customization, did you did any research upon it or like you just jumped into it? So when I started doing this customization, I never thought of selling my car. Yes, when you do some experiments on the car, it always degrades the value of your car. If in case you plan and you modify your car, then it is always suitable to sell the car to a person who can maintain it. All right. Who knows the knowledge of how modified cars should be. So yes, I did a lot of research before I started doing these things. There are friends of mine in South India who already did wide body kits on their car. I took some important points from them that should I implement the same on it. I lowered the car, I put the wide body kit on it, and other experiments too related to weight reduction and performance also. Alright guys, so we will just simply jump into the car and we will check out all those things which have been put into the product, or let's move to the demo part. So we are into the front section and we will look into the front fascia of the car. सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें लगी हुई हैं एंड मेरे साथ में अभी शुभम भाई, सो ही विल ब्रीफ अस अबाउट द कार, क्या क्या चीज़ें इसमें लगी हुई हैं एंड उसकी कॉस्टिंग क्या क्या आई है, इफ़ यू रिमेंबर ऑल दोज थिंग्स. सबसे पहले मैं बात करूँ हुड स्कूप, बॉडी हुड स्कूप जो है ये फंक्शनल है आई गेस. Yes, this is a functional. This is a custom-made bonnet. So we have opened the scoops here so that the heat of the car, since it's a diesel, it heats a lot as compared to a normal petrol car. So we have opened the scoop so that the जो इसकी गर्म हवा है वो गाड़ी से बाहर निकले और वेंटिलेशन होता रहे गाड़ी का. चलो अभी हेडलाइट यूनिट की तरफ चलते हैं. यहाँ पर क्या क्या चीज़ है? So this is also a custom-made headlamp. It has a retrofit projector kit in it. ठीक है. और साथ में ही जो इसके प्रोजेक्टर्स हैं वो भी प्रोजेक्टर्स हैं. फॉग लैंप्स जो है फॉग लैंप्स भी वो भी प्रोजेक्टर्स हैं. एंड दोनों यूनिट HID है. दोनों HID यूनिट है. दिस इज ये 55 वॉट HID है, ये 35 वॉट HID है. इंस्टेंट स्टार्ट है. मोहाली में एक कंपनी है जेनॉन प्लैनेट, ठीक है, उनके थ्रू डिज़ाइन है. और नीचे आपने जो लिप लगाई है, हाँ जी, तो इसमें पहले हमने बॉडी किट लगाई है, ठीक है, फिर गाड़ी को थोड़ा और लोअर इफेक्ट देने के लिए थोड़ा और बैलेंसर पहले लगा हुआ है आई गेस. हाँ, ये सपोर्टर है इसके अंदर, ताकि ये जो लिप है, हाँ जी, इंच, तो ये बॉडी किट को जो लिप्स हैं उनको सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि लोअर गाड़ी है, नीचे लगती भी ज़्यादा है, एग्जैक्टली, तो उसको सपोर्ट देने के लिए इंच लगा है. ठीक है. फेंडर फ्लेयर्स की बात करूं तो ये भी आपने सेम ऑर्गेनाइजेशन से कराया है या हाँ फिर? जी, तो ये भी कस्टम मेड फेंडर फ्लेयर्स हैं. ये गाड़ी को थोड़ी वाइड लुक देने के लिए बनवाया है. वाइड लुक भी, और इससे क्या होता है कि जैसे आपने टायर्स के प्रोफाइल ज़्यादा बड़े रखे हैं, हाँ जी, तो वो इसके अंदर इंटीग्रेट हो जाता है. Correct. इसका ये सबसे बड़ा पार्ट होता है एंड एज अ विंड रिफ्लेक्टर भी ये काम करता है. डेफिनेटली. सो एलॉयज की बात करते हैं फिलहाल. ये रोटी फॉर्म कंपनी के एलॉयज हैं. ये भी मैंने साउथ इंडिया से इम्पोर्ट करे थे. दिल्ली NCR में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं था. ये 17 इंची एलॉयज हैं और इनकी विड्थ है अराउंड 9.5J. हाँ, 205 प्रोफाइल की, 205 प्रोफाइल, यानी कि लो प्रोफाइल है ये. हाँ जी, लो प्रोफाइल से याद आया कि आपने इसका सस्पेंशन ट्यूनिंग एंड ग्राउंड क्लियरेंस पे भी काम करा है. डेफिनेटली. इसके अंदर कस्टम स्टिफ डैम्पर्स लगे हैं और साथ में ही टनाबी जापानीज कंपनी है, उसके लोअरिंग स्प्रिंग्स लगे हैं इसके अंदर गाड़ी को लोअर इफेक्ट देने के लिए. लोअरिंग मैं मानता हूँ बहुत लोग इस पर क्वेश्चन भी करेंगे कि गाड़ी लोअर है, प्रैक्टिकल नहीं है डेली NCR रोड्स पे. ऑब्वियसली दिस इज़ अ शो कार, तो चलती कम है, शो पीस ज़्यादा है, बट अकॉर्डिंग टू अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो लोअर करने के बाद गाड़ी का जो आपका हाई स्पीड पे टर्निंग रेडियस है और ग्राउंड क्लैरिटी कम होने से गाड़ी बहुत स्टेबल रहती है हाई स्पीड्स पे भी. एग्जैक्टली.
ये तो है, ग्राउंड क्लियरेंस से ऑब्वियसली सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो मेंटेन रहती है, प्लस आपने लो प्रोफाइल रख लिया तो मतलब हैंडलिंग लाजवाब हो गई होगी इसकी। मैं ड्राइव करने की एक बार चाहूंगा कि आप मुझे ड्राइव का भी बिल्कुल, मौका दें। एंड पीछे भी आपने लिप्स लगाए हैं, साथ ही आपने डुअल क्वाड जो है वो साइलेंसर लगाया है यहाँ हाँ पर। जी, तो इसमें ऑल 4 कॉर्नर्स पे लिप्स हैं गाड़ी को वाइड बॉडी किट को सपोर्ट देने के लिए। और इसमें डुअल एग्जॉस्ट का क्वाड सेटअप है, ठीक तो है। मतलब आप डुअल टिप्स देख रहे होंगे और इसका डुअल सेटअप करवाया गया है एग्जॉस्ट परफॉर्मेंस जो इंक्रीज स्पॉइलर करने है के लिए। ये भी आई गेस इंपोर्टेड है, मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। तो मॉन्स्टर स्पोर्ट एक थाईलैंड की कंपनी है, हाँ। उनसे ये इंपोर्ट करवाया गया था। दिस वाज द फर्स्ट स्पॉइलर टू बी इंपोर्टेड इनटू इंडिया ऑन अ स्विफ्ट। कॉस्टेड अ लॉट एज एट दैट पॉइंट इन टाइम, अब तो थोड़ा सस्ता हो गया है। ऑलराइट, एंड व्हाट अबाउट द सनरूफ? सनरूफ इज डन करा गया है बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी के थ्रू, विच इज़ वेबेस्टो, जो सारी हाई एंड कार्स का सनरूफ बनाती है। दिस इज़ अ मैनुअल सनरूफ, मॉडल नंबर है H100 इसका। कोई लीकेज की दिक्कत नहीं है, कोई एज एन मेरे को अभी तक 2 साल में कोई इंटीरियर्स की तरफ चलते हैं, चेकआउट करते हैं कि इसके इंटीरियर्स कैसे हैं। सो स्टेप इन करते हैं इस गाड़ी के अंदर, एंड यहाँ से भी जो चीज़ें हैं वो तो स्टॉक चीज़ें ही हैं, यहाँ पर आपने कोई फेरबदल मुझे तो लगता नहीं करा है। बट हाँ, ये जो डक सीट्स हैं या स्पोर्ट सीट्स जिनको मैं कह लूँ, इसका जो पूरा कंट्रोल है या ऑपरेटर है आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा, जो स्लाइड बार है एक्चुअली, बट ये रिक्लाइनेबल है और 6 वे एडजस्टेबल है, नो 4 वे एडजस्टेबल है। ऑल राइट, अब मैं अंदर चलता हूँ एंड अंदर के इंटीरियर्स चेकआउट कर लेते हैं कि अंदर है क्या क्या। राइट। सो इसमें इफ़ आई टॉक अबाउट अभी सबसे पहले तो जो चीज़ मेरे हमारे व्यूअर्स को दिख रही होगी वो होगा इसका एंड्रॉयड का स्टेरियो। ये हाइपरसोनिक कंपनी का Hypersonic, स्टेरियो है। 8 इंचेस इसकी विड्थ है। इसमें नेविगेशन और बहुत सारी यूट्यूब एप्लीकेशंस आप डाल के इसको आप चला सकते हैं। तो इसमें हम आगे चल के सिर्फ अपना हम नॉर्मल इसके अंदर कोई भी एप्लीकेशन जैसे हम फ़ोन में करते हैं वैसे इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने यूट्यूब डाउनलोड किया हुआ है, टॉक प्रो मैंने डाउनलोड किया हुआ है, प्ले स्टोर भी है, आप वो भी इसमें से सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं आप। ऑल राइट, ये जो आपने इतने सारे इंस्ट्रूमेंटल्स लगाए हुए हैं, राइट। क्लस्टर्स लगाए हुए हैं, इनके बारे में भी थोड़ा सा हाँ बताऊंगा। जी, तो ये भी थाईलैंड से ही इम्पोर्टेड है। डेफी नाम की एक कंपनी आती है जिसकी एक गेजेस हैं, अलग अलग रीडिंग्स बताता है, अलग अलग मीटर। लाइक ये वाला वोल्ट का बताता है, ये टर्बो, ऑयल टेम्परेचर, वैक्यूम, ऑयल प्रेस, आरपीएम कितना है गाड़ी का, वाटर टेम्परेचर कितना है गाड़ी का, ये सारी रीडिंग्स ये बताता है। ठीक है, ओके। अब आप मुझे इंटीरियर्स के बारे में कुछ बताएंगे कि इंटीरियर्स में आपने क्या क्या काम करवाया है इसके। जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि एक सनरूफ है, सनरूफ इसमें है। सनरूफ के अंदर, और आपने फिनिशिंग के अंदर भी यहाँ पर कुछ मटेरियल यूज करा है, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर कीजिए। उससे पहले अगर मैं इंटीरियर से पहले इसके सीट्स पे आऊँ, तो सीट्स आपको क्या कॉस्ट पड़ी एंड व्हाट इज द मॉडल नंबर, इफ यू रिमेम्बर द मॉडल नेम? ये आफ्टर मार्केट सीट्स हैं, इसका एज इन कोई मॉडल नंबर नहीं होता है। ठीक है। ये कॉस्ट करी थी, ये भी थाईलैंड से इम्पोर्टेड है। दीज कॉस्टेड अराउंड 20,000 रुपीज़, इंक्लूडिंग द इम्पोर्ट कॉस्ट एंड द शिपिंग चार्जेस। ठीक है। एडजस्टेबल है। कोई मोस्टली जो सीट्स आपको मार्केट में मिलेंगी, एक तो उनकी क्वालिटी बेकार होगी, दूसरा एडजस्टेबल नहीं होती है, तो वो स्टिफ रहती है, उसमें ड्राइविंग में भी दिक्कत आती है। ये एडजस्टेबल है, आप इनको रिक्लाइन भी कर सकते हो, आगे पीछे भी कर सकते हो। ऑलराइट। इंटीरियर की बात करूँ तो मैंने गाड़ी का पूरा इंटीरियर ब्लैक में रखा है, कॉज आई लाइक ब्लैक, इजी टू मेंटेन है। थोड़े आप यहाँ पे आप जो पैनल्स देखेंगे वो मैंने गाड़ी के एक्सटीरियर कलर से मैच किया है, वाइट एल्पाइन वाइट कलर के अंदर विद स्पार्कल्स। डैशबोर्ड्स के ट्रिम्स हैं जो, और डोर के जो ट्रिम्स हैं वो कस्टम मेटालिक ब्लैक कलर में पेंट किया हुआ है। उनके अंदर थोड़ा ग्लिटरी फिनिश है। ग्लिटर्स भी इसके अंदर हमने डाला है। ये पेंट एक्चुअली थोड़ा एक्सपेंसिव कॉस्ट करता है, तो पूरी गाड़ी भी एल्पाइन वाइट पेंट में विद ग्लिटर्स पेंटेड है। What I see here is there is a missing seat, और मतलब rear seat actually doesn't exist in this car. मेरे ख्याल में weight reduction would be the major cost reason why you did this. The main reason why I did this is because first the car is lowered. ठीक है। यूजुअली जब रियर सीट्स होती हैं तो लोग बहुत कहते हैं कि हमें बिठाओ हमें बिठाओ, तो ठीक है। गाड़ी पीछे से टच करती है। सेकंड इज वेट रिडक्शन, Alright. दैट इज व्हाई आई एलिमिनेटेड द सीट, ताकि सीट ना हो तो कोई बैठेगा भी नहीं और गाड़ी थोड़ी स्मूथ और परफॉर्मेंस वाइज भी अच्छा परफॉर्म करती है। करेगी। ऑलराइट।
तो अभी तक आपने क्या क्या इवेंट्स इसके अंदर कवर किए हैं, कौन कौन से इवेंट्स हैं जो एक्चुअली आपने इस स्विफ्ट के साथ में कवर किए हैं? सो हमारी हर मंथ कार हमारी कम्युनिटी है दिल्ली एनसीआर में जिनकी मीट्स होती रहती है, हम्म तो वहाँ पे ये जाती है एंड इट्स वन ऑफ अ वेरी अट्रैक्टिव कार। हम्म जैसे ही ये पहुँचती है लोग फोटोग्राफ्स क्लिक करते हैं, हम्म दे फील गुड टू बी क्लिक्ड विद द कार, उनको गाड़ी के साथ खड़े होकर हम्म फ़ोटोज़ खिंचवाना अच्छा लगता है। हम्म अगर कोई पब्लिक है तो वो भी काफ़ी अट्रैक्टेड फील करती है। जैसे हम्म आप अगर यहाँ बाहर भी दिखाएंगे अभी, हम्म तो लोग बहुत अट्रैक्टिव फील करते हैं गाड़ी के साथ। कईयों को तो ये भी नहीं पता चलता है कि गाड़ी कौन सी है, क्योंकि इतनी ज़्यादा कस्टमाइज करी हुई एग्जैक्टली है ये। एग्जैक्टली। आई विश टू टेक अ टेस्ट ड्राइव ऑफ दिस कार। डेफिनेटली। चलो टेस्ट ड्राइव की तरफ चलते हैं एंड फिर लास्ट में एक और सेशन रखेंगे कि कॉस्टिंग कितनी एक्चुअली आई है अभी तक शुभम भाई को। एंड चलिए, ऑलराइट गाइस, मैं आ चुका हूँ फाइनली इस सुपरली कस्टमाइज्ड गाड़ी के अंदर। ये 1.3 लीटर का डीजल इंजन है, DDIS इंजन है, जो आप काफी सालों से देखते हुए आ रहे हैं। एंड ये ऐसा इंजन है ना, कभी रिटायर नहीं होता। अभी भी मन नहीं है इसको छोड़ने का, बट फाइनली मारुति हैज टू लीव इट, क्योंकि 2020 में यूरो 6 नॉर्म्स आने वाले हैं एंड पॉल्यूशन को मद्देनजर रखते हुए हमें फाइनली इस इंजन को क्विट करना पड़ेगा। बट ये एक रीमैप्ड इंजन है एंड 104 से 110 bhp के आसपास ये पावर फिगर्स जनरेट करता है। आइडल कर रहा है लगभग 1000 आरपीएम पे, जबकि अगर मैं इसके डीजल इंजन की नॉर्मल आइडलिंग की बात करूँ तो वो 850 या 800 आरपीएम के आसपास ही होता है। तो आरपीएम्स जो है वो बढ़े हैं रीमैपिंग के बाद में। कुछ मुझे ऐसी चीज़ें जैसे कि क्लच पे जो है वो वाइब्रेशन नज़र आ रही है, जो डीजल इंजन में फिलहाल जिस लेवल की गाड़ी है उसमें नहीं आते हैं। रिवैम्पिंग की वजह से बीएचपी जो है वो बढ़ी है, उसकी वजह से पावर झेलने की क्षमता, क्योंकि ये नॉर्मली कंपनी मैन्युफैक्चर्ड कार है, वो क्लच पे नहीं आई है, तो इसलिए वाइब्रेशन जो है क्लच पे मुझे नज़र आ रहे हैं। फिलहाल चलते हैं इस गाड़ी को ड्राइव करते हैं, मज़े लेते हैं इस गाड़ी के बैठे। एक चीज़ जो है, पिकअप, इनिशियल पिकअप जो है वो आपको होता है ना, जैसे मुझे बुगाटी वेरॉन की यहाँ पे याद आती है। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, बट बुगाटी वेरॉन की टेक्नोलॉजी है कि वो 0 आरपीएम्स पर ही, या सॉरी, जो उसकी आइडलिंग पोजीशन है उस पर ही मैक्सिमम टॉर्क देती है। 1500 न्यूटन मीटर का टॉर्क वो आइडलिंग पोजीशन पे देती है। कुछ वैसा सा ही फील हुआ मुझे कि मुझे शुरुआती तौर पर ही जो है वो शुरुआती आरपीएम्स पर ही 1100-1200 आरपीएम्स पर ही बहुत अच्छा पिकअप मिल रहा है। एंड ये डीजल में बहुत नॉर्मल नहीं होता। डीजल में आपको लगभग 1250-1300 आरपीएम के आसपास जाना पड़ता है, तब जाके आपका जो टर्बो है वो एक्टिवेट होता है एंड फील नजर आती है। बट यहाँ पर लिटरली रीमैपिंग के बाद में मुझे कुछ एग्जॉस्ट नोट जो है वो भी लिटरली बदलाव आया है। टर्निंग रेडियस तो इस गाड़ी का लाजवाब है, 4.7 या 4.8 के आसपास है। क्या बताओ, आपने ब्रेकिंग में कुछ चेंज करवाए हैं? क्योंकि ब्रेकिंग के हिसाब से मेरे को लग रहा है, मुझे लगता था कि थोड़ा सा और पावरफुल होने चाहिए इसकी ब्रेकिंग। राइट, बाकी आप बताइए। तो इसमें मैंने अपग्रेड किया है, रेम्बो के ब्रेक पैड्स डाले हैं इसमें, और रेम्बो का ही .4 सिंथेटिक टू फुल सिंथेटिक ब्रेक ऑयल होता है, वो यूज़ कर रहा हूँ इसमें। ठीक है, रोटर्स स्टॉक हैं, तभी थोड़े ब्रेकिंग इसके और पावरफुल हो सकते हैं। प्लस इसके शायद अभी थोड़े कैलिपर पिन जो इसका होता है, आपकी में सबसे बड़ी दिक्कत है कैलिपर पिन की, ठीक है, वो चेंज होना है, तभी ब्रेकिंग इसकी नॉर्मल थोड़ी आपको सॉफ्ट लग रही होगी एज कम्पेयर टू पावर। प्लस रोटर्स स्टॉक है, परफॉर्मेंस इंक्रीज हुआ है तो थोड़ा बहुत फर्क आएगा कि ब्रेकिंग थोड़ी हल्की लगेगी आपको। अच्छा, आपने जो है सस्पेंशन इसकी और स्ट्रिप करा दी है? हाँ जी, कुछ आपको मेजर होगा पता चल रहा है कि ऑब्वियसली उस टाइम पे, जिस टाइम भी रिलीज हुई थी उस टाइम प्रीमियम हैचेस का जमाना नहीं था, उस टाइम इसी को प्रीमियम हैच माना जाता था, और तो ये मिड लेवल हैचबैक की कैटेगरी में आती है। सेल आउट करने चाह रहे हैं आप इसे? यस, अभी मैंने रिसेंटली प्लान बनाया था, इंस्टाग्राम पे भी डाला था दैट आई एम प्लानिंग टू सेल दिस कार ऑफ। मैकेनिकली वाइज जितना मैंने पैसा लगाया है कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में, जस्ट कि एज एन अपग्रेड मूविंग टू अ 4 मीटर सब एसयूवी। तो शुभम भाई, एक बात बताओ, इसमें एक्सपेंस कितना आ गया और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इसका मॉडिफिकेशन के बाद में? क्या परफॉर्मेंस में कुछ अंतर आया गाड़ी के, या फिट एंड फिनिश में कुछ अंतर आया, कुछ ऐसा लगा? परफॉर्मेंस में है, क्योंकि गाड़ी रीमैप्ड है कोड 6 ट्यून, जो बैंगलोर का एक ब्रांड है ठीक उनसे। है। हाँ हाँ। प्लस इसमें स्टॉक रिप्लेसमेंट हमारा KNN का एयर फिल्टर भी है, और साथ में एग्जॉस्ट भी जो हमने अपने व्यूअर्स को दिखाया वो भी है। तो परफॉर्मेंस वाइज यस, जो स्टॉक आती है स्विफ्ट वो अराउंड 74-75 bhp होती है। BHP पावर, ये वाली एग्जैक्टली। आफ्टर सारे ट्यून्स क्लोज टू 105-110 bhp ओह है। माय गॉड, सो नाइस। अभी टेस्ट ड्राइव में आपने दिखाया भी होगा, तो हाँ। गाड़ी का जो
है वो बहुत अच्छा अच्छा हो गया। हाँ नॉर्मल स्विफ्ट अराउंड 13 से 14 सेकंड में 0 to 100 जाती है, हाँ ये वाली हाँ। 10-11 सेकंड में 0 to 100 पहुंच जाती है। मेरे को लिटरली परफॉर्मेंस में तो अंतर मुझे काफी नजर आया, क्योंकि चलाने के बाद मुझे लिटरली लग रहा था कि हाँ बहुत चेंज आया है Right. इंजन रीमैपिंग के बाद में। काफी जो है स्पीड लिमिटर या आरपीएम लिमिटर जो है वो सारी चीजें वो हट जाती हैं। एनीवे अभी आपका एक्सपेंस कितना लग गया इस गाड़ी में? टोटल गाड़ी की कॉस्ट को अगर हम अलग करें तो हम्म। मैंने अभी तक क्लोज टू अराउंड 7 लाख रुपीस गाड़ी में स्पेंड किया है, जिसमें हमारा सारा इंपोर्ट का सामान, हाँ। वाइट बॉडी किट्स, ठीक है। अलॉयज हाँ, और हाँ। जो भी हमने अपने व्यूअर्स को भी हमने मॉडिफिकेशन दिखाई हैं, सब मिला के क्लोज टू अराउंड 7 लाख रुपीस का spend 7 आ लाख चुका है। रुपीस आ चुका है। सो इस स्विफ्ट की अगर आपको और बहुत सारी डिटेल्स जाननी है, सो आई हैव शोन द इंस्टाग्राम आईडी हेयर, यहाँ पर जाके आप भाई को फॉलो कर सकते हैं। सो प्लीज फॉलो कीजिए इस इंस्टाग्राम आईडी पे, एंड मिलते हैं एक और ऐसे सेशन के साथ में। अगर सेशन पसंद आए तो यू जस्ट हैव टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो के साथ में। अंटिल फॉर द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार, ड्राइव सेफ।